Assalamualaikum and welcome back to all. Welcome back students in my channel. Today we are going to continue for standard 12 subject statistics chapter number 1 probability part 2. Today's topic is exercise 1.2 sum number 4 to 7. This is the 8th part of this chapter, so concentrate. This is very important chapter for examination. Let's start with sum number 4 to 7 from exercise 1.2. Number 4. One number is selected at random from the first 100 natural numbers. Find the probability that this number is divisible by 7. यहाँ पे 1 से एक नंबर सिलेक्ट करना है 100 नेचुरल नंबर में से, तो 100 में से 1 नंबर सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स 100C1. द सैम्पल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट U इज इक्वल टू 1 2 3 4 डैश 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 टू 100. One number is selected at random, therefore total number of primary outcomes n is equal to 100C1. The answer is 100. Now किसकी probability फाइंड करनी है? Find the probability that this number is divisible by 7. 1 से 100 नंबर में 7 का डिविजिबल कौन कौन से नंबर है वो उसकी हमें probability फाइंड आउट करनी है. तो event that the number selected is divisible by 7 is equal to event A. Therefore A is equal to, यहाँ पे हमें 7 का टेबल बोलना है 100 की लिमिटेशन तक. तो जैसे कि 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 से लेकर 98 तक जाना है. Therefore favorable outcomes for the event A is m is equal to 14. Now probability A is equal to m by n is equal to m is equal to 14 है, n is equal to 100 है. 14 by 100 answer is 2 7 जा 14 divided by 250 जा 100. 2 2 cut, answer is 7 by 50. 5. The sample space for a random experiment of selecting numbers is U is equal to 1 2 3 dash 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 to 120, and all the outcomes in the sample space the equiprobable. Find the probability that the number selected is number 1 a multiple of 3. यहाँ पे सैम्पल स्पेस क्या बनेगा? 1 से 120 तक, उसमें से एक नंबर रैंडमली सिलेक्ट करना है, दैट मीन्स 120C1. n इज इक्वल टू 120 हमें आंसर मिलेगा. हम उसको कैसे लिखेंगे? U इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 टू 120. A number is selected at random, therefore total number of primary outcomes is n is equal to 120C1. Answer is 120. Now event A. Number 1, event that the number selected is a multiple of 3. 3 का मल्टीपल होने की probability फाइंड आउट करनी है. तो हमें क्या करना है? डायरेक्टली भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं और इस तरह से भी 3 का टेबल बोलना है. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 से लेकर 120 तक जो 3 का मल्टीपल है वहाँ तक हमें जाना है. डायरेक्टली हम कैसे इसे फाइंड आउट कर सकते हैं? जैसे कि टोटल हमारे कितने नंबर्स है? 120. मल्टीपल किसका फाइंड करना है? 3 का. 120 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इज 40. देयरफॉर m इज इक्वल टू हमें यहाँ पे 40 मिलेगा. नाउ प्रोबेबिलिटी A इज इक्वल टू m बाई n इज इक्वल टू 40 बाई 120. 40 1 जा, उसको हम कैसे कट करेंगे? 40 1 जा 40 एंड 43 जा 120. 40 cut, final answer is 1 by 3. Now event A dash, event that the number selected is not a multiple of 3. 3 का मल्टीपल नहीं होने की probability फाइंड आउट करनी है. तो आप जानते हैं 3 का मल्टीपल होने की probability A है, तो 3 का मल्टीपल नहीं होने की probability क्या बनेगी? A dash. Therefore probability A dash is equal to 1 minus probability A. हमने प्रोबेबिलिटी ए कितनी फाइंड आउट की है 1/3.
1 minus 1 by 3. Answer is 2 by 3. Now number 3. Event that the number selected is a multiple of 4 is equal to event B. इसकी किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है? 4 का मल्टीपल है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। आप जानते हैं 1 से 120 तक है, तो एक हम इस तरह से भी ले सकते हैं जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 से लेकर 120 तक। और दूसरा हम कैसे उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास टोटल नंबर कितने हैं? 120 तक है। 120 4 का मल्टीपल है, इसीलिए हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे, तो 120 डिवाइडेड बाई 4, टोटल हमें उसके रिजल्ट मिलेंगे 30। Therefore, favorable outcomes for the event B is m is equal to 30. Now, probability B is equal to m by n is equal to 30 by 120. 30 1 जा 30, 34 जा 120, 30 30 cut, answer is 1 by 4. Now number 4, event that the selected number is not a multiple of 4. 4 का मल्टीपल होने की प्रोबेबिलिटी b है, तो 4 का मल्टीपल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? b डैश। Therefore, probability b dash is equal to 1 minus probability b is equal to 1 minus 1 by 4. Answer is 3 by 4. Now number 5, A intersection B. Event that the number selected is a multiple of both 2 and 4. यानी यहाँ पे 3 and 4, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है, ऐसे नंबर के फाइंड आउट करके हमें उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो उसका इजी नंबर क्या बनेगा? इजी वे कैसे बनेगा? जैसे हमें 3 और 4 को पहले मल्टीपल करना पड़ेगा, यानी 3 4 जा 12। यहाँ पे 12 का टेबल कंटिन्यू करना पड़ेगा। 12 का टेबल हम कंटिन्यू करेंगे तो उससे जो नंबर मिलेंगे वो 3 का भी मल्टीपल होगा और वो 4 का भी मल्टीपल होगा। दैट्स वाई हम यहाँ पे 12 का टेबल कंटिन्यू करेंगे। 12 1 जा 2, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 से लेकर 12 10 जा 120। यानी इसको हम दूसरी तरह से भी यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? 120 डिवाइडेड बाय 12, आंसर इज 10। Therefore, favorable outcomes for the event A intersection B is m is equal to 10. Probability A intersection B is equal to m by n is equal to 10 by 120. Answer is 1 by 12. Now number 6. Find the probability of getting R in the first place and M in the last place when all the letters of the word random are arranged in all possible ways. यहाँ पे हमें क्या करना है? रैंडम के जो लेटर्स है वो लेटर्स को आर को फर्स्ट यहाँ पे आर को फर्स्ट प्लेस पे रखना है और एम को लास्ट प्लेस पे रखना है। बाकी के जो 4 लेटर्स है उसको हम अपने हिसाब से कोई भी वे में उसको हम यहाँ पे प्लेस दे सकते हैं। दैट मीन्स उसको हम यहाँ पे कोई भी हिसाब से रख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंडीशन क्या है? आर को फर्स्ट रखना है, एम को लास्ट रखना है और उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हियर देयर आर 6 लेटर्स रैंडम RANDOM इन द वर्ड रैंडम। यहाँ पे फैक्टोरियल की मेथड से हमें फाइंड आउट करना है। द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग दिस 6 लेटर्स इज n is equal to 6p6 is equal to 6 factorial। 6 factorial यानी 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, answer is 720। Now event that getting R in the first place and M in the last place, यहाँ पे event A R फर्स्ट पे रखना है, फर्स्ट प्लेस पे रखना है, M को लास्ट प्लेस पे रखना है। Therefore, favorable outcomes for the event A are obtained as follows। यहाँ पे हमें क्या करना है? R को फर्स्ट ही रखना है और M को लास्ट ही रखना है, यानी 1p1 उसका फैक्टोरियल बनेगा, इसका फैक्टोरियल 1p1 में बनेगा। बाकी के जो 4 लेटर है हम उसको अपने हिसाब से उसे यहाँ पे प्लेस दे सकते हैं। Therefore, उसको सिलेक्ट करने के लिए 4p4 की तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं। Now M is equal to पहले जो 1p1 है वो
ये 1p1 है वो इंटू 4p4 दैट मीन्स 1 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 4 फैक्टोरियल यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 4 3 ज़ा 12 12 2 ज़ा 24 24 1 ज़ा 24 1 फैक्टोरियल 1 total final answer is 24. Now probability A is equal to m by n 24 by 720. इसको हम कैसे कट करेंगे 24 1 जा 24 एंड 24 इंटू 30 720 होगा यानी 24 24 कट होगा यहाँ पे फाइनल आंसर हमें मिलेगा 1/30. Find the probability of getting vowels in the first, third and sixth place when all the letters of the word orange and arranged in the possible ways. यहाँ पे हमें किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है ऑरेंज वर्ड में फर्स्ट प्लेस पे थर्ड प्लेस पे और सिक्स प्लेस पे हमें क्या रखना है वॉवेल्स रखना है और बाकी की 3 नंबर्स को हम अपने हिसाब से अरेंज करके उसको प्लेस देने की प्रोबेबिलिटी हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है. तो कैसे करेंगे तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हियर देयर आर 6 लेटर्स इन ऑरेंज वर्ड ORANGNE and there are 3 vowels in orange word O, A, in and E. The total number of ways of arranging these 6 letters n is equal to 6p6 is equal to 6 factorial. Therefore 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 answer is 720. Now event of getting vowels in the first, third and sixth place is equal to event A. Therefore the favorable outcomes for the event A are obtained as follows. यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे हमें O ही रखना है थर्ड प्लेस पे A और E रखना है दैट मीन्स कोई भी वॉवेल को हमें फर्स्ट थर्ड और सिक्स प्लेस पे रखना है. वैसे कि हम A को फर्स्ट भी रख सकते हैं E को सेकंड भी रख सकते हैं बट कंडीशन ये है कि वॉवेल्स फर्स्ट और थर्ड और सिक्स प्लेस पे आना चाहिए. तो ये जो 3 वॉवेल्स है उसको अरेंज करने की पॉसिबिलिटी कितनी बनेगी 3 फैक्टोरियल यानी 3p3 और बाकी के जो 3 नंबर है उसको हमें अरेंज करने की प्रोबेबिलिटी बनेगी 3p3 यानी वो भी हम 3 फैक्टोरियल के हिसाब से उसे भी हम अरेंज कर सकते हैं. देयरफॉर m इज इक्वल टू 3p3 इंटू 3p3 इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू again 3 factorial 3 into 2 into 1 3 2 ja 6 as it is 3 2 ja 6 into 6 answer is 36. Now probability A is equal to m by n is equal to 36 by 720 is equal to इसको हमें कैसे कट करना है 36 1 जा divided by 36 into 20 final answer is 36 cut answer is 120. Students this is very important sum for examination so concentrate here and do similar illustration in homework and please send it on my personal number. Inshallah I will explain next sum in my next video. Till then be safe and concentrate on study. Assalamu alaikum.